Hello everyone. My name is Aryan and we are here to discuss the one of the questions of Meta Hacker Cup 2025 of round 1 which just took place on Saturday. So during the contest I was able to solve the first few problems up till C, but I was not able to decode the D problem and wasn't able to come up to a linear solution to just get accepted in it. But after the contest I just solved it and found that even it was on the higher number of points, but still ये problem सबसे easier थी in the all of the problem statements that are greater than 20 points, which is B2, C, and D. Amongst them, D is the easiest one accordingly if you are able to come up to a great observation based solution. So let's just quickly read the problem statement, understand what the problem statement is saying, and इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या प्रोसेस करना है, and किस तरीके से आंसर निकालना है. So after that we will just look into the approach कि how we can solve this problem efficiently. So problem D crash course says that Alice and Bob are back at their favorite restaurant, Nim Sum Dim Sum, and they are sitting on opposite sides of a long table with Alice on the left. Between them, there are n plates expressed as a string and each containing either almond jelly or a barbecue bow. Alice is hungry only for almond jelly and Bob only for barbecue bows. So they take turns eating as follows. So up till now, the question says that they have came up to a restaurant where there is a long table on which there are dishes represented by either A or B in this way. And on the left side is Alice, and on the right side we have Bob. So after this, उन्होंने बताया हुआ है how in which fashion they are gonna eat these dishes. तो अगर उसको रीड करें तो it says कि Alice will select an almond jelly plate of her choice and pull on the very long tablecloth until that plate is in front of her, sending the prefix of dishes before crashing to the ground. She will then eat the jelly. So Alice basically इस तरफ से कोई भी डिश पिक करेगी. लेट्स से उसने ये डिश पिक करी तो वो टेबल क्लॉथ को अपनी तरफ पुल करेगी एंड इससे पहले की जितनी भी डिशेज हैं वो सारी बेसिकली टेबल क्लॉथ पुल होने की वजह से ग्राउंड पे गिर जाएंगी. तो बेसिकली ये सारी डिशेज वेस्ट हो जाएंगी इन दिस केस. एंड फिर एलिस को जो डिश खानी है वो खा लेगी. तो दिस इज हाउ एलिस डिशेज को खाएगी. तो जो भी डिश वो चूज करेगी उससे पहले की सारी डिशेज वेस्ट हो जाएंगी एंड जो डिशेज से खानी है वो खा लेगी. कूल. So let's see Bob कैसे खाएगा. So Bob will then select a barbecue bow plate of his choice and pull on the tablecloth until the plate reaches to the right end of the table and also knocking over the suffix of dishes. उस केस में prefix of some dishes waste हो रहे थे, यहाँ पे कुछ suffix of dishes waste होंगे and he will eat that bow. So let's say Bob ने ये वाली डिश चूज करी, ये मेरे को ये वाली खानी है. तो इससे पहले वो टेबल क्लॉथ पुल करेगा अपनी तरफ एंड इससे पहले की जितनी भी सारी डिशेज हैं वो नीचे फॉल हो जाएंगी. बिकॉज ऑफ दैट ये सारी वेस्ट हो जाएंगी एंड बॉब अपने वाली डिश को टेबल के एंड पे ला करके खा लेगा. सो इन लास्ट सिनेरियो सिर्फ ये ए बी बचेगा, बाकी सारी डिशेज वेस्ट हो जाएंगी एंड जो बॉब ने चूज करी थी वो खा लेगा. सो दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम आर गोना ईट दीज डिशेज एंड एलिस हमेशा आलमंड जेली खाएगा एंड बॉब हमेशा बारबेक्यू बाव खाएगा. इसके अलावा वो एक दूसरे की डिशेज नहीं खाने वाले हैं. इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि दिस रिपीट्स अंटिल एवरी डिश इज आइदर ईटन और नॉक्ड ऑन द ग्राउंड. तो ये गेम या ये प्रोसेस तब खत्म होगा जब सारी डिशेज या तो खा चुके हैं ये लोग या फिर ग्राउंड पे गिर चुकी हैं. इफ वन प्लेयर इफ on a player's turn there are no remaining dishes of their preferred type, they will skip their turn without doing anything. And if each player wants nothing more than satisfaction of eating the last remaining dish on table, and both chose which dish to eat based on that, so who will eat the final dish. So basically अगर लेट से एलिस के कुछ इस टाइप ऑफ फॉर्मेट में हम पहुंचे जहां पे सिर्फ ए प्रेजेंट है एंड बी प्रेजेंट नहीं है. सो इन दैट केस एलिस तो अपनी बारी में कोई भी चॉइस ऑफ डिश खा सकती है जो उसका मन करे इन तीनों में से.
बट बॉब इस सिनेरियो में कोई भी डिश नहीं खा पाएगा क्योंकि उसके पास उसकी चॉइस ऑफ डिश अवेलेबल है ही नहीं। सो इन दिस केस इसकी टर्न हमेशा स्किप हो जाएगी। एंड दोनों चाहते हैं कि ये टेबल पे जो भी लास्ट डिश प्रेजेंट है वो वाली खाएं। सो हमें ये पता लगाना है कि ऑप्टिमली जब दोनों अपने अकॉर्डिंगली सही सोच करके चलेंगे तो ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो हमेशा लास्ट डिश खाएगा। तो एक दो अगर हम टेस्ट केसेस देखें एंड फिगर आउट करें हाउ द थिंग्स आर गोना वर्क। So basically, if I look up on the first test case, it is A double B triple A B. So in the first test case, it is like A double B triple A B. So in this case, एलिस हमेशा स्टार्ट करने वाली है एंड बॉब सेकंड टर्न लेगा। एलिस के पास इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं विच इज वो आइदर ये डिश चूज कर ले, ये डिश चूज कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कुछ भी कर ले। बट वो एक ऑप्टिमल प्ले दिखाना चाहेगी सच दैट बॉब के पास मिनिमल चांसेस हों लास्ट डिश खाने के। लेट से एलिस ये चूज करती है कि मेरे को ये वाली डिश खानी है। तो इसके लिए वो क्या करेगी, टेबल क्लॉथ को अपनी तरफ पुल करेगी इससे पहले कि ये सारी डिशेस वेस्ट हो जाएंगी एंड ये वाली डिश एलिस खा लेगी। तो दिस इज ऑल्सो ईटन। आफ्टर दिस जो इकलौती डिश बची है दैट इज बी विच इज बारबेक्यू बाउ। तो बॉब सिंपली इस डिश को खा लेगा। तो इस केस में लास्ट डिश किसने खाई, बॉब ने। तो अगर एलिस ये वाला डिश चूज करती है तो इस सिनेरियो में हमेशा बॉब लास्ट डिश खा रहा है। तो ये तो एलिस के लिए ऑप्टिमल है ही नहीं। तो एलिस कभी भी इस डिश को चूज नहीं करेगी इन हर फर्स्ट राउंड क्योंकि ये उसको एक लूजिंग स्टेट की तरफ लेकर के जा रही है। सिमिलरली इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है उसके पास लेट्स से ये वाली डिश खाने का। तो अगर वो ये डिश खा लेती है विच इज इससे पहले की ये सारी डिशेस वेस्ट, ये डिश उसने खा ली। तो उसके अलावा ये दो डिशेस बची हुई हैं अब ए बी इस फॉर्मेट में। अब बॉब क्या करेगा, बॉब के पास कोई और ऑप्शन तो बचा ही नहीं है, एक सिंगल ऑप्शन है विच इज दिस डिश। तो वो इसको खा लेगा। अब एलिस के पास क्या ऑप्शन बचा है कि जो एक लेफ्ट ओनली ए डिश है वो आराम से उसको खाए एंड लास्ट डिश एलिस ने कंज्यूम करी। तो इस केस में एलिस जीत जाएगी। सिमिलरली इसके अलावा और भी कोई ए चूज करती हो विच इज अगर वो इस ए को चूज करती इन दिस सिनेरियो होता क्या, ये डिश खाने के बाद एक डबल ए बी कुछ इस फॉर्मेट में डिशेस बचती। तो इस केस में भी सेम हम एक पोजीशन पे आते जिसमें एलिस जीतने वाली थी। तो ऑब्वियसली एलिस ऐसा ही कोई मूव इनिशिएट करेगी सच दैट वो एक अच्छी स्टेट तक पहुंचे एंड आफ्टर दैट बॉब के पास जो भी सिचुएशन बचेगी वो उससे फिगर आउट करेगा। तो पहले टेस्ट केस का हमें क्लियर रिजल्ट समझ में आ रहा है कि एलिस अकॉर्डिंगली अगर सही चलेगी पहली मूव तो इसकी विनर एलिस होने वाली है। क्लियर। और टेस्ट केस देखते हैं विच इज लेट से ये ए एंड बी वाले सिनेरियोज तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेट से ये सिनेरियो लेके देख लेते हैं एक और, नॉट दिस, लेट्स गो विद दिस वन। सारे बी हैं, लास्ट डिश इज ए। तो इफ दिस टाइप ऑफ टेस्ट केस इज गिवन टू अस एंड यहाँ से एलिस खा रही है, इस एंड से बॉब कंज्यूम कर रहा है। तो आलमंड वाली जेली वाली कितनी डिशेज है, एक डिश है। इसको एलिस अगर कंज्यूम करना चाहती है तो उसको इससे पहले की सारी डिशेस पुल करके नीचे गिरानी पड़ेंगी एंड उसके बाद अपने डिश को वो खा लेगी। इसको खाने के बाद कोई डिश बची है अपने पास, द आंसर इज नो। तो क्या बॉब कोई डिश खा पाएगा, नहीं। कौन खाएगा ये लास्ट डिश, एलिस। तो इस टेस्ट केस में भी कौन विनर है, एलिस। तो पहले टेस्ट केस एंड लास्ट टेस्ट केस दोनों में एलिस विनर है। तो इसी तरीके से हमें फिगर आउट करना था कि ऑल द गिवन टेस्ट केसेस में ऑल सिनेरियोज में कौन विनर होने वाला है। तो इनिशियली मेरे दिमाग में जो प्रोसेस था विच वाज आई वाज थिंकिंग ऑफ अ डीपी स्टेट कि फॉर एनी डीपी ऑफ आई कॉमा जे मैं फिगर आउट कर पाऊं हु विल गोना बी द विनर बिटवीन दिस आई एंड जे। बट बेस्ड ऑन दैट जो भी मैंने ट्रांजिशन क्रिएट करी थी ऑफ दिस डीपी और वो काइंड ऑफ एक नॉट लीनियर सॉल्यूशन में मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था एंड आई वाज गोइंग समवेयर अराउंड एन स्क्वायर सॉल्यूशन। तो मुझे पता था वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला एंड आई वाज नॉट एबल टू ऑप्टिमाइज दिस ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट। बट आफ्टर द कॉन्टेस्ट मैंने कुछ टेस्ट केसेस बना करके देखे, कुछ सिनेरियो सोचे कि क्या क्या हो सकता है एंड आफ्टर दैट मुझे समझ में आया कि बहुत सिंपल सी एक ऑब्जर्वेशन है
जिससे हम डिराइव कर सकते हैं अपना करेक्ट आंसर। तो लेट से मैं एक टेस्ट केसेस बताऊं विच इज जो इसमें भी गिवन था कि कुछ टेस्ट केसेस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, विच इज अगर सारे ए हैं, विच इज दिस टेस्ट केस कि लेट से एक सिनारियो है जहाँ पे सारे ए वाली डिशेस प्रेजेंट है, तो क्या कभी बॉब को ये डिश खा भी पाएगा? द आंसर इज नो। लेट से एलिस ने स्टार्ट किया, वो अपनी चॉइस की कोई भी डिश पिक कर ले रिगार्डलेस ऑफ द पॉइंट क्या उसको खानी है, बॉब की टर्न तो हमेशा स्किप होने वाली है इस सिनेरियो में, बॉब कोई डिश खा ही नहीं पाएगा, तो कोई तरीका ही नहीं है बॉब को लास्ट डिश खाने का, एंड हमेशा एलिस विल गोना कंज्यूम द लास्ट डिश एंड एलिस विनर होगी इस केस में। लाइकवाइज द उल्टा केस ऑफ दिस विच इज ऑल बी प्रेजेंट, इस सिनेरियो में उल्टा होगा एलिस के साथ कि वो कोई भी डिश कभी खा ही नहीं पाएगी एंड फॉर श्योर लास्ट डिश बॉब ही खाने वाला है, सो ही इज गोना बी द विनर ऑफ दिस। ऑल्सो देयर इज अ सिनेरियो विच इज अभी हमने देखा ऊपर एक टेस्ट केस में कि ऑल बीज आर प्रेजेंट एंड आफ्टर दैट सम एज आर प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा, क्या एलिस रिगार्डलेस किसी भी ए को चूज कर ले कोई फर्क पड़ेगा? लेट से एलिस ने ये ए चूज किया, ये ए चूज किया, ये ए चूज किया, कोई भी ए चूज करे उससे पहले जितनी भी बॉब की डिशेस अवेलेबल हैं वो सारी खराब होंगी ही होंगी एंड बॉब कुछ कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सो इस केस में भी एलिस इज गोना बी आर विन। तो ये जो टेस्ट केसेस गिवन है आउट ऑफ दैट उसमें से भी हम सिंपली ऑब्जर्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, बट द कॉम्प्लेक्स थिंग वाज कि जब ए बी ए बी बी ए बी ए इस टाइप का कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वेयर ए एंड बी आर नॉट इन सम लीनियर फैशन और कॉन्जिक्यूटिव एज या कॉन्जिक्यूटिव बीज एक सेट ऑफ फॉर्मेट में नहीं है एंड कोई भी रैंडम स्ट्रिंग जनरेटेड है, तो इस केस में हम आंसर कैसे फिगर आउट करेंगे? तो इसको मैंने बहुत सिंपल छोटे छोटे लेवल पे ब्रेक डाउन करके देखा कि सिंगल ए सिंगल बी इस स्टेट में कौन जीतेगा। लेट से एलिस की टर्न है, लेट से बॉब की टर्न है, अगर सिंगल वैल्यू प्रेजेंट है तो इसमें कौन जीत सकता है? देयर इज नो अदर ऑप्शन, जिसकी डिश अवेलेबल है वही जीतेगा, विच फॉर ए एलिस इज गोना बी अ विन, फॉर बी बॉब इज गोना बी, कोई और सिनेरियो बन ही नहीं सकता। लेट्स ट्राई इट फॉर टू साइड स्ट्रिंग्स ए बी। फॉर ए एलिस कुछ भी कर ले कोई तरीका नहीं है उसके बाद जीतने का, सॉरी फॉर डबल ए बॉब कुछ भी कर ले उसके पास कोई तरीका नहीं है जीतने का बिकॉज उसकी डिश अवेलेबल है ही नहीं। तो इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो एलिस जीतेगी, इन दिस टाइप ऑफ सिनेरियो बॉब जीतेगा। बट फॉर ए बी एक बहुत प्यारी ऑब्जर्वेशन निकल कर गई मेरे लिए जिसने काफी कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। what is gonna happen in the scenario A B? Let's say एलिस एंड बॉब दोनों खेल रहे हैं एंड लकीली एलिस की टर्न है पहली, ठीक है। एलिस क्या करेगी, कुछ ऑप्शन है ही नहीं, अपनी ये वाली प्लेट खा लेगी अपनी डिश। बॉब की टर्न आई, बॉब क्या करेगा, अपनी वाली डिश खा लेगा। तो इस केस में जीता कौन? अगर टर्न एलिस की थी विच इज ऑल और इफ आई से फर्स्ट टर्न एलिस की थी तो विनर कौन हुआ? बॉब। सेम सिनेरियो ए बी, बट इस केस में ना फर्स्ट टर्न इज ऑफ बॉब। तो अब किस तरीके से ये गेम प्रोसीड करेगी? बॉब अपनी बी वाली डिश कंज्यूम करेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास, अवेलेबिलिटी सिंपल एक डिश की ही है। एलिस अपनी ए वाली डिश कंज्यूम कर लेगी इस केस में। लास्ट डिश किसने खाई? एलिस ने। हु इज द विनर? एलिस। तो कभी भी किसी ऐसी स्टेट में हम पहुंचेंगे जहां पे सिर्फ ए एंड बी प्रेजेंट है, उस केस में वो बंदा हमेशा हारेगा जिसकी टर्न है। सिंपल। अगर एलिस की टर्न है एट ए बी तो एलिस हारेगी, एंड अगर बॉब की टर्न है एट ए बी तो बॉब हारेगा। तो हर कोई बंदा अवॉइड करेगा ऐसी स्टेट पे पहुंचने से जहां पर ए और बी बचाओ एंड टर्न उस खुद के प्लेयर की हो। वैसे अगर बॉब की टर्न आती है इस पोजीशन पे या एलिस की आती है
तो वो दोनों ही अवॉइड करेंगे ऐसी किसी स्टेट पे पहुंचना। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर इस स्टेट पे वो गए विद देयर टर्न तो फॉर श्योर वो हारने वाले। तो वो कभी भी इस तरीके का कोई ऑपरेशन चूज नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो किसी ऐसी स्टेट में जाकर के पहुंच जाए। सो व्हाट इफ कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ, डबल ए, डबल बी, ए बी एंड ए, ए, बी और बी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ अगर मैं इसमें देखूं तो ये जो मिडल ए बी है, लेट से मैं इसके अगेंस्ट चेक करना चाहता हूँ और ये लोग अवॉइड कर रहे हैं कि इस मिडिल स्टेट पे ना पहुंचे। तो एलिस के पास क्या ऑप्शन है खाने के? आइदर एलिस इस ए को चूज कर ले, तो बॉब के पास सिंपली एक टर्न बचेगी, दो टर्न बॉब जीत जाएगा। एंड एलिस ने लेट से ये चूज कर लिया, उस स्टेट में होगा क्या? इससे पहले की सारी डिशेज वेस्ट, विच इज ये सारी वेस्ट, ये वाली एलिस ने कंज्यूम कर ली। अब बॉब के पास क्या ऑप्शन है? ये बॉब ने ये वाली कंज्यूम कर ली, खत्म। अब क्या स्टेट बची है? ए बी। एंड टर्न किसकी है? एलिस की। एलिस हार जाएगी। क्या एलिस कभी इस पाथ को फॉलो करना चाहेगी? द आंसर इज नो। तो हर कोई अवॉइड करेगा गोइंग ऑन टू अ स्टेट ए बी विद देयर टर्न। तो वो हमेशा इसी ऑर्डर में चीजें खाने की कोशिश करेंगे सो दैट कि वो कभी भी एक ऐसे पॉइंट पे ना जाके फंसे जहां पे उनकी टर्न आ जाए विद अ गिवन ए बी। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होगी वेयर एक्स स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ए बी बीच में प्रेजेंट है एंड वाई स्ट्रिंग लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो वो या तो अक्रॉस खाएंगे या किसी ऑर्डर में खाएंगे सच दैट वो इस स्टेट, इन सारी साइड्स की स्ट्रिंग्स को खत्म करके इस स्टेट में कभी भी ना पहुंचे। तो एलिस एंड बॉब दोनों इस ए बी वाली स्टेट को अवॉइड करेंगे, विच इज वो कभी भी कोशिश करेंगे कि ऐसी स्टेट के पास ना जाएं, बिकॉज इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि जिसकी भी टर्न होगी वो हार जाएगा। तो वो हमेशा इस ए बी वाली स्टेट से दूर रहने वाले हैं। ये लूजिंग स्टेट है फॉर बोथ ऑफ देम। सो ए बी इज अ लूजिंग स्टेट फॉर बोथ। इसमें तो कभी भी वो लोग अपने हाथ खराब नहीं करना चाहेंगे। सो अगर वो लेट से इस ए बी वाली स्ट्रिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं तो उस केस में होगा क्या? ए बी, इधर कुछ लेट से ए, ए, ए ऐसे है, बी, बी, कुछ भी मैं भी एक अज्यूम कर रहा हूँ उसने। तो इस केस में अगर एलिस की टर्न है तो वो कभी भी झट से ये सारे एज को एक बार में कंज्यूम नहीं करना चाहेगी, वरना सिंपल सा है, बॉब ये वाले बीज को कंज्यूम करके ये ए बी स्टेट किसकी तरफ पुश कर देगा? एलिस की तरफ, कि जाओ मेरा तो काम हो गया, मैंने अपनी टर्न कर ली है, तुम इस ए बी में से खा के बताओ। एंड ए बी एक लूजिंग स्टेट है फॉर बोथ ऑफ देम। तो वो दो चीज करने वाले हैं, एक तो खुद स्टेट पे जाने से अवॉइड करेंगे कि कभी भी इस लूजिंग स्टेट पे खुद ना पहुंचे। दूसरा वो ट्राई करेंगे कि ये लूजिंग स्टेट ना दूसरे बंदे के पास चली जाए, विच इज इस केस में अगर एलिसन लेट से ये वाला ए खाने की ट्राई करी तो ये पीछे की सारी डिशेज वेस्ट ये उसने कंज्यूम कर ली। अब बची हुई स्ट्रिंग क्या है? दिस। तो बॉब इंस्टेड ऑफ एक ये डिश खाने के वो सिंपली कोशिश ये करेगा कि भाई ये सारे डिशेज एक बार में खत्म करो, विच इज इसको चूज करो, सारी खा लो। एंड ये एबी वाली स्टेट किसको दे दो हैंडल करने के लिए? एलिस को। क्योंकि उसको पता है इस एबी वाली स्टेट से हमेशा वो खुद जीत जाएगा अगर एलिस ने शुरू करा तो। क्लियर है? दोनों इस एबी वाली स्टेट को अवॉइड करने वाले हैं। तो मेरा आइडिया सिंपली ये था कि हमेशा अगर ये ए बी वाली स्टेट को अवॉइड करेंगे तो वो अपनी टर्न्स इस तरीके से चलेंगे कि कभी भी इस स्टेट पे एंड ना करें, विच इज वो दोनों चाहते हैं कि इस स्टेट में कभी भी ना घुसे। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग में से ना ये जितने भी जगह पे ए भी कॉन्जिक्यूटिवली आ रहा है इसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते ना स्टेट में जाना। दो इनको सिंपली इनकी जितनी भी अकरेंसेस हैं ए और बी साथ में इनको रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद जो भी बची हुई स्टेट मतलब डिशेज बचेंगी जिस भी ऑर्डर में, वो लोग उसके साथ खेलने की कोशिश करेंगे सो दैट उसमें रिलेटिवली अगर जो भी जीत सकता है उसके बेसिस पे वो डिसीजन निकालने अपना। बट लेट से एक सिनेरियो ऐसा है, ए बी, ए, ए बी, ए और नॉट ए, लेट से बी, बी,
कूल है। अगर इसके अंदर से मैं ए बी के अकरेंसेस देखूं और हटाने की कोशिश करूं, ये ए बी साथ में है, हटा दिया, ये ए बी साथ में है, हटा दिया। बट जैसे ही हटाऊंगा ये ए बी बी, एक ऐसी स्टेट बन जाएगी। इसके अंदर से भी क्या होगा, ये ए बी एक और साथ में है ना, तो इसमें भी दिक्कत है। तो इसको भी अगर मैं हटाऊंगा तब जाकर के मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। तो मेरे को ट्राई करना है कि मैं किसी तरीके से इस स्टेट तक आऊं। बट होगा क्या इस सिचुएशन में, क्यों अवॉइड करेंगे ऐसे ए बी को हटाना वो लोग, क्योंकि इससे भी तो काम चल सकता है ना। सिंपल ए बी हटा करके क्या पता उसके पास रिजल्ट आ जाए सही से। बट अगर मैं सिंपली अपनी उसी वो वैल्यू को वापस से लिखता हूँ, तो ये गेम किस तरीके से चलने वाली है अगर मैं ए बी को नहीं हटाता एंड कंसिडर करके चलता हूँ। और ये रहा ए बी साथ में कौन से है, मैं वो मार्क कर रहा हूँ फॉर आर रेफरेंस, ताकि मैं पता चला इसके अराउंड अगर किसी ने कोई छेड़छाड़ी करी तो क्या रिजल्ट होने वाला है। एल इसके पास क्लियर तीन ऑप्शन अवेलेबल आ रहे हैं, एक दो एंड तीन। होगा क्या, पहला ऑप्शन इज दिस। अगर लेट से एलिस ने ये चूज कर लिया विच इज ये ए हटाया, तो अगर इसके पीछे कोई स्ट्रिंग प्रेजेंट होती भी ना तो भी वो वेस्ट होती। एंड इस सिनेरियो में प्रेजेंट नहीं है तो भी कुछ नहीं हुआ। बॉब के पास एक क्लियर ऑप्शन अवेलेबल आ रहा है ऐसा जिसमें लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर बी अवेलेबल है। इससे पहले की सारी स्ट्रिंग्स खत्म हो चुकी। ठीक है, होगा क्या इस केस में, एलिस सॉरी बॉब सिंपली इस डिश को पुल करेगा अपनी तरफ सो दैट पीछे के डिशेस वैल्यू ही ना रखे कभी। तो सबसे पहला ए बी छेड़ना एलिस के लिए डेंजरस है, रिगार्डलेस वो स्टेट में कुछ भी कर ले। पहला इस ए बी वाला कॉम्बिनेशन छेड़ना एलिस के लिए डेंजरस है। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन उसके पास ये आता है, इस पे वापस बाद में आते हैं। लेट से इस ए बी को उसने पहले छेड़ा, इसके अंदर भी क्या होगा, इस ए को कंज्यूम करने के लिए इससे पहले का सारा डेटा लॉस एंड ये ए उसने खुद खा लिया। सिचुएशन क्या बनी, दिस। रिगार्डलेस यहां पर ए नहीं है, होता भी तो भी कुछ हो पाता। बॉब का सिंपल क्लेवर मूव होता कि वो वापस से इसी डिश को अटैक करे विच इज द लेफ्ट मोस्ट बी एंड सारा कुछ पीछे का खराब करके इसको कंज्यूम करे बाहर निकल जाए। इस सिनेरियो में भी एलिस का लॉस है। तो कभी भी एक ए बी वाला पेयर अगर वो एलिस छेड़ेगी तो उसके अंदर उसी का लॉस है, क्योंकि ए बी वाला पेयर छेड़ने का मतलब है बी लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक्सपोज हो जाएगा तुम्हारी जो भी स्ट्रिंग्स हैं उसके। क्लियर है, एंड लेट से इसकी जगह जो बचा हुआ ए है एलिस ने समहाउ उसको चूज कर लिया विच इज इस वाले ए को। अगर वो इसको चूज कर लेती है तो ये पीछे का डेटा खत्म, इसके ऊपर एलिस ने मतलब खुद खाया उसको, बाकी बचा हुआ स्ट्रिंग इज दिस। अब यहाँ पे बॉब के हाथ में गेम आती है। ठीक है, अब लेट से इसके अंदर ए बी वाला पेयर कौन सा बचा हुआ है, बॉब किस तरीके से मूव करेगा। अगर लेट से बॉब ने कोशिश करी कि इस ए बी वाले पेयर को मैं छेड़ दूं, तो उसके लिए उसको ये बी कंज्यूम करना पड़ेगा। ये बी कंज्यूम करने का मतलब है ये दोनों खराब, बी उसने खा लिया, बचा क्या सिर्फ ए। कौन जीतेगा इस केस में, एलिस। तो बॉब कभी भी उस ए बी वाले पेयर को नहीं छेड़ेगा, क्योंकि ए बी वाले पेयर को छेड़ने का मतलब है बॉब का नुकसान, क्लियर कट नुकसान। तो बॉब कभी भी उस पेयर को नहीं छेड़ेगा। उसके अलावा क्या ऑप्शन थे बॉब के पास, कि वो उसके अलावा जो बचे हुए दो बी हैं उनमें से किसी को भी कंज्यूम कर ले। लेट से वो इसको कंज्यूम करता है तो एक स्टेट बनेगी ए बी एंड टर्न किसके पास चली जाएगी, ए बी वाली एलिस के पास। तो सारा गेम किसके अराउंड चल रहा है अब, सिर्फ सिर्फ ये कॉन्सिक्यूटिव ए और बी के। सिमिलरली अगर वो ये बी भी कंज्यूम करेगा तो एक स्टेट आएगी ए बी भी। इसमें नंबर ऑफ बी ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ ए, तो ये ए बी इनिशियली टच किसको करना पड़ेगा, एलिस को। तो कभी भी जो बंदा इस ए और बी कॉन्जिक्यूटिव वाले सिनेरियो को टच करेगा ना सबसे पहले, वो हारने वाला है, फॉर श्योर हारने वाला है। तो समझ में आ रहा है कि ए एंड बी साथ में होने पर दोनों के लिए डेंजर है, विच इज एलिस के लिए भी बॉब के लिए भी। तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी सिचुएशन को छेड़े ही ना और दूसरे की तरफ पुश कर दे। तो इसी सिनेरियो के अंदर अगर मैं लेट से कॉन्जिक्यूटिव ए बी वाले पेयर्स को एलिमिनेट कर दूं, विच इज पहले ये ए बी साथ में था, ये हटा दिया मैंने, इसके बाद क्या बचा, सिंपल ए।
फिर ए बी साथ में था, मैंने हटा दिया, क्या बचा? अभी भी इस सिनेरियो के अंदर भी अगर मैं गेम कंसिडर करना चाहूँ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे लोग, फिर वही एलिस के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है रैदर देन इस ए बी वाले पेयर को ब्रेक कराने का। और ए बी वाला पेयर छेड़ते ही कौन हारेगा? एलिस। तो अब मुझे इस ए बी को फिर से यहाँ से रिड्यूस कराना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है जब तक स्ट्रिंग के अंदर कोई भी, ये नहीं किस पोजीशन पे है कहाँ है, रिगार्डलेस कहीं भी ए बी वाला पेयर प्रेजेंट है, तो मैं एक फाइनल डिसीजन तक तो फॉर श्योर नहीं पहुंचने वाला हूँ। एंड उस केस में जो भी उस ए बी वाले पेयर को टच करेगा वो हारेगा, ये कंफर्म है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी गिवन स्ट्रिंग है एस, उसके अंदर जितने भी कॉन्जिक्यूटिव ए बी के पेयर्स हैं उनको हटा सकता हूँ। इसमें से मैं कॉन्जिक्यूटिव ए बी के पेयर्स हटाऊंगा अगर, तो मेरी बची हुई स्ट्रिंग कैसी दिखेगी? ए बी डबल बी, ऐसी। लेकिन अब फिर से एक कॉन्जिक्यूटिव ए बी का पेयर आ गया, लेट से मैं इसे भी हटा देता हूँ। बची हुई स्ट्रिंग कैसी दिखी है? इसमें कौन जीतने वाला है, क्या लगता है? क्लियर कट आंसर है बॉब। एलिस कभी जीतेगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि कोई एलिस की डिश अवेलेबल है ही नहीं। सिमिलरली किसी भी पोजीशन पे तुम इन कॉन्जिक्यूटिव ए बीज को हटाते चलोगे और वो अगर न्यू पेयर फॉर्म हो रहा है लेट से, तो हमें वो न्यू पेयर भी हटाना है, विच इज हमने यहाँ करा। ये ए एंड ये भी साथ में नहीं थे, बट ड्यू टू एक ए बी हटाने के एक और ए बी का पेयर फॉर्म हो, तो हमें ये भी हटाना है। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ए एंड बी साथ में आ रहे हैं तो हम उनको हटाते रहेंगे। आफ्टर डूइंग दिस तुम हमेशा ना एक चार स्टेट्स के अंदर लाए करने वाले हो। अब ये चार स्टेट्स कौन सी हैं, इस पे आते हैं। एक सेकंड में ये इरेज कर देता हूँ पहले। हमेशा आफ्टर रिमूविंग कॉन्जिक्यूटिव ए बी पेयर्स, तुम एक सिचुएशन में आने वाले हो जहां पे ए और बी साथ में कभी नहीं होंगे। तो वो क्या होगा? या तो सारे ए बचे हैं, सिर्फ ये, या तो सारे बी बचे होंगे, या फिर हो सकता है नॉट ए बी, बी ए वाला कोई पेयर बचा हो, ऐसे सिंपल। और हो सकता है ए और बी टोटली खत्म हो गए हो और एक एम्प्टी डिस्क बची हो। सही है। एंड ए एंड बी हटने की वजह से अभी इनिशियली एलिस ही स्टार्ट कर रहा है इस गिवन पॉइंट, कर रही है इस गिवन पॉइंट से। ठीक है। तो होगा क्या? और क्वेश्चन में ये मेंशन तो नहीं होगा इसके रिगार्डिंग की इवन लेंथ, तो कुछ नहीं। सही है। तो इस सिनेरियो में किस तरीके से गेम प्रोसीड होगी, इसमें क्या लगता है? सिर्फ ए विच इज एल की डिश प्रेजेंट है, बॉब की प्रेजेंट ही नहीं है। तो बॉब की सारी टर्न्स स्किप होती रहेंगी, कोई तरीका ही नहीं है। लास्ट डिश हमेशा एलिस खाने वाली है, तो इसके अंदर विनर कौन होगी? एलिस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर एलिस एंड बॉब दोनों खाने की ट्राई कर रहे हैं इस डिश को, तो एलिस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई भी डिश खाने का। इस पूरी टेबल की सारी डिशेस बॉब ही खत्म करेगा, रिगार्डलेस वो किसी भी डिश को पिक करना शुरू कर दे। तो बॉब जीतेगा यहाँ पे। यहाँ पे टर्न एलिस की इनिशियली, तो क्या लगता है एलिस किस तरीके से मूव करेगी यहाँ पे सो दैट वो जीत जाए? वो आंख बंद करके किसी भी ए को चूज कर लेगी, तो उससे पहले की सारी डिशेज विच इज बॉब की जितनी भी डिशेज हैं वो सारी वेस्ट होंगी, और वो किसी भी ए को चूज करके खाए, नो डाउट एलिस ही जीतने वाली है। एंड अगर एम्प्टी है, टर्न एलिस की है, एलिस कोई डिश खा ही नहीं सकती, विच मीन्स लास्ट डिश किसने खत्म करी होगी? बॉब ने। तो ये चार सिग्नल के तो आंसर हमें क्लियरली पता है। एंड अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव एबीज को हटा देता हूं अपनी स्ट्रिंग में से, तो मैं हमेशा इन्हीं चार टेम्पलेट सिचुएशंस में लाया करने वाला हूँ। तो इन चारों के लिए मेरे को आंसर पता है। एंड क्या मैं कॉन्जिक्यूटिव एबीज को हटा सकता हूँ अपनी स्ट्रिंग में से जब जब वो बने? और उसके लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन समझ में आता है कि अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव ए एंड बीज को हटाना है अपने स्ट्रिंग के अंदर से, तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज बी बी तो वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू यूज स्टैक फॉर दिस।
क्योंकि अगर तुम सिंपली एक आइटरेशन में एक कॉन्जिक्यूटिव ए बी को हटाना चाहते हो, दैट इज लीनियरली पॉसिबल, कि तुम लेट से ये ए बी साथ में आया हटा दिया, ए बी साथ में आया हटा दिया, बट इसके बाद जो जुड़ने पे दोबारा से ए बी बन रहा है, तुम इसको हैंडल नहीं कर पाओगे। और इसको हैंडल करने के लिए तुम्हें अगर करना भी है तो बार बार इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करके चेक करना पड़ेगा, दैट कैन न्यूली गो अप टू एन स्क्वायर। सो टू अवॉइड दिस थिंग, हम सिंपली एक स्टैक का यूज कर सकते हैं। एंड स्टैक इस सिचुएशन में हमें कैसे हेल्प करेगा, लेट्स सी दैट। तो मैं लेट से एक स्टैक मेंटेन करूंगा ऑफ कैरेक्टर टाइप, विच विल डिनोट कि मेरे को लास्ट कैरेक्टर कौन सा मिला है। सही है, लेट से मैंने ए से स्टार्ट किया, लास्ट कैरेक्टर कौन सा मिला, ए, मैंने डाल दिया, आगे चला गया बी। अब चेक करने के लिए क्या कोई कॉन्जिक्यूटिव ए बी पेयर मिल रहा है, मेरा करंट कैरेक्टर कौन सा है, बी, एंड इससे प्रीवियसली मुझे कौन मिला होगा, वो मुझे कहां से मिलेगा, फ्रॉम स्टैक के टॉप से। तो मैं सिंपली चेक करूंगा स्टैक के टॉप पे क्या प्रेजेंट है, ए, मेरा करंट क्या है, बी, कॉन्जिक्यूटिव ए बी पेयर बन रहा है, तो बी को मत डालो, प्लस ए को हटा दो। तो मैं बी के लिए मैंने कुछ भी नहीं करा, एंड ए को मैंने स्टैक से हटा दिया। तो मैं कहाँ पे आ गया हूँ, इस ए पे। इस ए के लिए मतलब करंट कैरेक्टर मेरा ए है, एंड प्रीवियसली स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो कभी ए भी बनेगा ही नहीं, सिंपली ए को अंदर डालो एंड आगे चले जाओ। अब मैं किस पे आया, बी पे। मैं क्या चेक करूंगा, मेरा प्रीवियस कैरेक्टर कौन है, वो कहेगा मेरा प्रीवियस कैरेक्टर इज ए। फिर से एक ए बी पेयर बन रहा है, तो मेरे को इसको हटाना है, तो मैं स्टैक से रिमूव कर दूंगा एंड इस करंट कैरेक्टर को स्किप कर दूंगा एंड आगे चला जाऊंगा। तो स्टैक अब मेरा फिर से एम्प्टी हो गया। क्लियर है। अब करंट कैरेक्टर कौन सा है, ये बी, इससे पहले कुछ है, नो, सिंपली बी को स्टैक में डालो, कंटिन्यू। अब अगेन बी है, कुछ भी नहीं है, तो बी को डालो, अगेन बी है, पीछे ए नहीं है, डाल दो, अगेन बी है, पीछे ए नहीं है, डाल दो। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, प्रीवियस कैरेक्टर कौन सा है, तो एक और सिनेरियो ले लेते हैं, विच इज लेट से जहां पर ये कंबाइन हो करके बनाने वाले थे, वो आई गेस हमने मिस कर दिया टेस्ट केस लिखने में। तो ए बी ए बी बी एंड बी। तो इसके लिए एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो दिस इज गोना बी माई स्टैक, जिसमें मैं लास्ट कैरेक्टर ट्रैक करूँ। तो मैं ए पर आया, इससे प्रीवियस कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये किसी से पेयर नहीं बनाएगा, सिंपली इसको स्टैक में डालो और चले जाओ। तो मेरा आइडिया ये कि अगर मेरा करंट कैरेक्टर बी है एंड स्टैक के टॉप पर ए है, तो ये एक ए बी पेयर बनाएंगे। तो इस केस में स्टैक से ए निकाल दो, एंड इफ दिस सिनेरियो इज नॉट हैपनिंग, एल्स केस, सिंपली स्टैक में करंट कैरेक्टर डाल दो, दैट सिंपल। तो अभी अब मेरा करंट कैरेक्टर कौन सा हो गया, बी, एंड स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा है, ए, मुझे स्टैक से ए निकालना है, मैंने स्टैक से ए निकाल दिया। आगे में गया ए पे, करंट कैरेक्टर बी नहीं है एंड स्टैक के टॉप पे भी ए नहीं है, सिंपली ए को यहाँ डाल दो। आगे गया मैं ए, सेम अगेन करंट कैरेक्टर बी नहीं है, वापस से ए डाल दो। अब आगे बढ़ा बी, करंट कैरेक्टर बी है, यस, स्टैक के टॉप पे ए है, यस, तो स्टैक में से एक टॉप वाला ए निकाल दो, विच इज मैंने ये ए बी पेयर मतलब हटा दिया है, ये ए बी पेयर हटा दिया। अब ये ए एंड ये बी आपस में होकर कंबाइन एक ए बी पेयर बनाते, बट मैं जैसे ही बी पर आया, करंट कैरेक्टर मुझे बी मिला, स्टैक के टॉप पे ए मिला, तो मैं इस ए को भी यहाँ से रिमूव कर दूं। तो इन दिस केस मैंने ये ए बी पेयर जो फ्यूचर में फॉर्म होता, मैंने इसको भी हटा दिया। करंट कैरेक्टर मेरा बी है बट स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो सिंपली बी को डालो एंड माय रिजल्टेंट स्ट्रिंग विल बी बी इन दिस केस। सो बाय यूजिंग दिस स्टैक मैं सिंपली ए बी वाले सारे पॉसिबल पेयर्स हटा सकता हूँ, एंड मेरे पास एक सिंपल स्ट्रिंग आएगी विच इज आइदर ऑफ दीज फोर स्ट्रिंग्स। एंड इन फोर स्ट्रिंग्स के लिए मेरे को सिंपली पता है कि अगर मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग के अंदर, विच इज इन दी स्ट्रिंग्स में से किसी के अंदर भी ए प्रेजेंट है, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, एलिस जीता, यहाँ पे ए प्रेजेंट है, एलिस जीती,
इसके अलावा अगर ए प्रेजेंट नहीं है तो बॉब जीत रहा है। तो मुझे सिंपली बस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ये तो चेक करना है ए प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करा हमने प्रॉब्लम को, समझा बहुत ऑन द लो लेवल हाउ थिंग्स आर गोना वर्क, तो एक लीनियर सॉल्यूशन आया। बिकॉज ये स्टैक प्रोसेस करने में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल गोना बी लीनियर। उसके बाद मुझे चेक करना है वेदर ए इज प्रेजेंट और नॉट, उसके लिए भी माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लीनियर। एंड फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स मेरा n कैन गो टू 6 × 10⁵, एंड लेट्स से t 100 टेस्ट केसेस भी हैं, तो इट कैन गो अप टू 10⁶ एट मैक्स इन द वर्स्ट केस। तो for surely it gonna work. And if we talk about space complexity, in worst case stack order of n size तक का ही हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं। तो हमें सिंपली फिर उसको प्रोसेस करना है एंड वी आर गुड टू गो। तो हमारा सिंपल सा एल्गोरिदम और द फाइनल प्रोसेसिंग फॉर वे क्या होगा कि हम रिमूव करेंगे all AB occurrences using stack, सिंपल। उसके बाद वी हैव 4 केसेस, एंड उन 4 केसेस को भी मुझे मैनुअली हैंडल नहीं करना। मुझे सिंपली क्या चेक करना है, डज द रिजल्टेंट स्ट्रिंग हैज ए, इफ इट हैज ए, yes, so who is going to be the winner? Alice. If there is no a in this, my winner will be Bob. So it was that simple. अगर हम इस पूरी प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन करके इस पोजीशन तक आ चुके हैं, तो आई गेस इम्प्लीमेंटेशन वाइज कोड वाइज इट वाज जस्ट सिमिलर टू अ प्रॉब्लम विच इज AF प्रॉब्लम। you simply iterate करना and you have your answer, whereas in B2C you must know some PNC or combinatorics basics, तभी हम उस चीज को प्रोसेस कर पाएंगे। बट इन दिस DF प्रॉब्लम it was simply observation based problem and you will be able to get the highest point which we just lost। so एक बार सिंपली कोड और देख लेते हैं which is काफी easy है, but still let's quickly look into it। so we are going to take the input of n and s, and for stack मैंने simply string maintain कर लिया and instead of top मैं back access कर लूंगा। so for every character in the string, if the current character is b and stack empty नहीं है, plus stack के top पे which is stack के back में in case of string a present है, मैं सिंपली स्टैक में से पॉप बैक कर दूंगा। जस्ट पीपी इज नथिंग बट पॉप बैक, ये टेम्पलेट में लिखा मैंने कहीं, पॉप बैक। क्लियर? अदरवाइज इन एल्स केस मैं सिंपली स्टैक में उस वैल्यू को डाल दूंगा विच इज पुश की जगह पॉप पुश बैक यूज करेंगे हम इन केस ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने सिंपली एक वेरिएबल बनाया बूल एनी ए, एंड सिंपली उस गिवन स्टैक पे इटरेट करके चेक करा क्या कोई भी ए प्रेजेंट है। इफ एनी वैल्यू इज ए, मैं इसको ट्रू करूंगा एंड ब्रेक कर दूंगा, एंड आउटपुट करते टाइम देखूंगा इफ एनी ए इज प्रेजेंट Alice is going to be the winner, otherwise Bob is going to win। so इतना सिंपल कोड था फॉर वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तो जनरली हार्ड प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना इज द मेन कोर लॉजिक instead of writing some heavy implementation or some heavy logic। so this was my upsolving idea for this problem and I wanted to just share it with everyone। and if you guys really got engaged with this and you want baki problem ke solutions bhi, so just let me know in the comments and we will be able to discuss all the other problems as well, because I had solved all of them during the contest, so I will be able to explain them easily। so thank you so much for joining।